today, let's begin with the second chapter, How the Dog Found Himself a New Master, Grade 6. Before going into the detail, I will brief you about this chapter. This is an amazing story of a dog searching for a master. It wants to serve the strongest animal on earth. Dog finds a solution to his loneliness in Wolf and decides to work under him. When he finds that Wolf is afraid of Bear, he leaves Wolf for searching a new master. He tries to work under Bear and Lion, but later the dog found that human being was the most powerful animal on earth, and he finally decides to be a man's slave. So let's begin with the chapter. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with his way of life. Earlier यहाँ पे ये बता रहा है कि पहले के टाइम पे डॉग अपने खुद के मास्टर थे, बट वन डे एक डॉग ने डिसाइड किया कि वो किसी का सर्वेंट बनेगा who was the strongest on earth. तो वो he was tired and sick, यहाँ पे वहाँ घूमता रहा. He was sick and tired of wandering about by himself. Ill-pleased is not happy. वो अपनी फ्रीडम से खुश नहीं था, उसको कोई मास्टर चाहिए था. तो he started wandering here and there, wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than him. वो डरता था कि वो फूड के लिए तो यहाँ वहाँ घूमता था एंड डरता था कि उससे स्ट्रॉन्गर जो भी हो उनसे वो डरता था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. तो उसने सोचा एंड डिसाइड किया कि मैं सबसे डरूं, उससे बेटर है मैं सबसे बेस्ट इंसान को या सबसे बेस्ट क्रिएचर को ढूंढूं ह्यूमन पे अर्थ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो एंड मैं उसके अंडर उसका सर्वेंट बन जाऊंगा. तो ऐसा सोच के वो अपने मास्टर को ढूंढने के लिए निकला. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो वो चलता गया और एक दिन kinsman को मिला. Now what is kinsman? रिलेटिव वर्ड ऑफ फियर्स, मतलब वायलेंट होता है, जो फ्राइटनिंग होता है. वो एक किंग्समैन को मिला जो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग था. वो कौन था? तो वो बिग वुल्फ था जो अपने में इतना स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स था. नाउ फियर्स इज फेरोशियस, जो एकदम वायलेंट होता है. तो वो ऐसे घूमते घूमते एक वुल्फ को मिला जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट था. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? तो वो वुल्फ ने उसको देखा और पूछा कि तू कहाँ जा रहा है. तो डॉग ने आंसर दिया कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ कि जिसको मैं सर्विस दे सकूँ. आप इतने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मैं क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहोगे? डॉग ने ऐसा वुल्फ को पूछा. I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. वुल्फ ने माना कि हाँ क्यों नहीं, आप आई डोंट माइंड कि अगर आप मैं आपका मास्टर बनूँ. तो दोनों ने माना एंड दोनों साथ में चलने लगे. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off all the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वो चलते गए एंड अचानक ऑल ऑफ अ सडन वुल्फ ने अपना नोज़ लिफ्ट किया, मतलब अपना नोज़ उठाया एंड ही स्निफ्ड, स्मेल करने लगा एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ. अचानक से अपने रास्ते से हट गया. डार्टेड इज मूव्ड क्विकली और सडनली. वो अपने रास्ते से हट गया, बुश में जाके छुप गया एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो बुश में अंदर ही अंदर जाता गया. तो डॉग वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या कर रहा है वुल्फ. तो What's come over you, master? He asked, and what has frightened you so much? तो वो पूछता है कि अचानक आपको क्या हो गया. कम ओवर यू, आपको क्या अफेक्ट कर दिया, आप इतना घबरा
क्यों गए? Can't you see? There's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो वोल्फ बोलता है आपको दिख नहीं रहा है, वहाँ पे कौन है? वहाँ पे बेर है एंड बेर हम दोनों को खा सकता है, you and me. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left Wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." देखा कि वोल्फ से बेर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बेर इज स्ट्रॉन्गर देन वोल्फ डेफिनेटली. तो डॉग ने डिसाइड किया कि अब मैं वोल्फ की सर्विस छोड़ दूंगा एंड बेर को जाके उसने पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? तो बेर ने भी अग्री कर लिया एंड द बेर अग्रीड टू दिस रेडीली. और उसने बोला चल हम जाके काउ के हर्ड को ढूंढते हैं. नाउ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रुप ऑफ काउज को ढूंढते हैं. मैं एक काउ को मार दूंगा, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. हम दोनों का खाना खा सकते हैं. They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moaning loudly and running in a panic in all directions. वो लोग चलते गए और उन्होंने एक हर्ड ऑफ काउस भी ढूंढा, उन्होंने काउस को भी ढूंढा. बट जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो एक टेरिबल सा नॉइज़ आया. ना टेरिबल इज एक अजीब सा नॉइज़ आया उन लोगों को और उन लोगों ने देखा कावर मूइंग. जो काव आवाज़ निकालती है उसको हम मूइंग कहते हैं. तो दे वर मूइंग लाउडली एंड वो पैनिक होके एक जगह से दूसरी जगह दे वर रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस. So we will take a pause for today and we'll continue with this part in the next class. I hope you will read this chapter and please write the meanings which are given to you in the pink box. Please write these meanings and also make sentences of the same. Thank you.